student of class 12 science. In the electromagnetic induction part 4, part 3 already finished, part 4 we are going to discuss the motional EMF, the changing of the area and movement of the rod in the uniform magnetic field and eddy current, etc. Motional EMF, the induced EMF produced by changing the area of the closed circuit by movement of the circuit, full circuit or the part of it through a uniform magnetic field is known as the motional EMF. That is the meaning of that. Here, say this particular magnetic field is there, cross means vertically downward, under की ओर, and here we have taken the coil, rectangular coil. It is moving with a speed v. In here, the part of it comes out. Okay, the length of this rectangular loop is your L. Now the same thing we have to understand in this way also. Here we have taken this is the coil, right? Now what happens here, the direction of the magnetic field intensity is inward, vertically inward. Now if this particular coil is moving like that, moving, initially it is totally inside the field. Now the change of area, some part is coming out, कुछ part इसका बाहर आ रहा है, ऐसे. So we have to find the expression for that motional EMF. Now how to find a motional EMF? That you have to see it. First we have to find the change in the magnetic flux, del phi b, right? We have assumed this at a certain time t, it's a del x part comes out from the magnetic field. Okay, मान लेते हैं हम लोग del x आगे निकल गया. तो change in the magnetic flux is equal to, we know the minus sign. Why we are using the minus, that I will tell you just now. Minus b into change in the area in del t time into cos theta. Now here, interesting, cos theta. What is the value of the cos theta? Just to see, because so del phi b is equal to this negative sign indicates indicates that the part of it comes out. Area decreases. ये area इसका कम हो रहा है. Magnetic field के comparison में area कम हो रहा है. That indicates by the negative sign. Now here cos theta. Now what is the angle theta? Here just to see, the direction of the magnetic field is this, and the area का एरिया वेक्टर किधर होता है? ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का भी है, ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर का भी है, सेम डायरेक्शन है. तो क्या हो जाएगा? एंगल थीटा. क्लियर और नॉट? ये डायरेक्शन क्या चीज का है? एरिया वेक्टर का, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का भी. तो एंगल इज 0. सो वी हैव टू राइट माइनस बी इंटू चेंज ऑफ एरिया, change of area in del t time into cos 0. यहां पर हम लोग का माइनस बी इंटू एरिया. अब यहां देखिए L और डेल एक्स, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ये बाहर निकला है. तो चेंज इन एरिया कितना हो गया? L इंटू डेल एक्स इंटू cos 0 1. तो ये डेल फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज इतना आया. नाउ अब हम लोग को करना क्या है? मोशनल ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है. तो ईएमएफ इंड्यूस निकालने के लिए क्या करेंगे? फैराडेज लॉ, डेल फाई बी बाय डेल टी इज इक्वल टू, यहाँ कितना आया? बी नेगेटिव, यहाँ इसका वैल्यू पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो बी एल डेल एक्स बाई डेल टी। अब यहां पर जो डेल एक्स बाई डेल टी है, इसको हम लोग वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। कितना डेल एक्स पार्ट आगे बढ़ा टी टाइम में या नेट डेल टी टाइम में, इसको वी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ई आई कितना आ गया, बी एल वी। ये आपका मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन हुआ, वेरी सिंपल। और अगर कोई पूछेगा कि इंड्यूस्ड करंट कितना हुआ, तो बी एल वी बाई आर कर देंगे, रेजिस्टेंसेस को डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस। ये पर्टिकुलर मोशनल ईएमएफ का ये मेथड 1 हम लोग कर सकते हैं, और मेथड 2 भी है इसका निकालने का। सेकेंड मेथड हम लोग जो यूज करते हैं ये एक्सप्रेशन निकालने के लिए, ई आई इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी, कैसे यूज करते हैं, लोरेंज फोर्स का यूज करके। लोरेंज फोर्स का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला था क्यू वी क्रॉस बी, उसका यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं इसका, सेम एक्सप्रेशन आएगा, इजी। ओके, नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक is a motional induced EMF in a conducting rod rotated in magnetic field. Here I have taken the magnetic field. Here the conducting rod is there. Say this is a situation and rod is moving in the magnetic field like that. Uniform magnetic field. Right? Say here the rod is there and the length of the rod is say L. And it is rotating in this manner. Say after a small interval of time t, it comes here and makes an angle alpha. ठीक है, ये रॉड ऐसे करके घूम रही ऐसे करके इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये रॉड यहां से यहां तक पहुंचा एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द पोजिशन ऑफ दिस रॉड आफ्टर स्मॉल इंटरवल टाइम। और ये रॉड कैसे मूव कर रही है, विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो मान लेते हैं पहले ये इसका वन एंड है और ये रॉड का यहाँ पर ये एक पॉइंट क्यू है, ये टी टाइम के बाद क्यू डैश पोजिशन में आया, ऐसे कर यहाँ से ऐसे चला था, ऐसे रॉड आया और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, अल्फा। यहां से हम क्या करते हैं, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, मान लेते हैं ये n, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है और ये लेंथ इस रॉड का कितना था, L था। ना अब हमको करना क्या है, हमको निकालना क्या है, ईएमएफ का वैल्यू। ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ है, इंड्यूस्ड, उसका वैल्यू निकालना है। तो हम देखेंगे पहला ये देखेंगे, तो ईएमएफ हम कैसे निकालेंगे, वही ई आई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, उसका यूज करके निगेटिव ऑफ दैट, उसका यूज करके निकालेंगे। और डी फाई का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, फाई का बी ए कॉस थीटा। तो पहले ए निकालना होगा, एरिया। तो अगर मान लेते हैं ये रॉड अल्फा डिग्री से घूम गया है, तो एरिया स्वेप्ट कितना होगा, ये एरिया अगर हम यहां से ड्रॉप किए परपेंडिकुलर, तो ये लगभग, इफ पॉइंट एन इज वेरी नियर टू क्यू, तो द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दिस योर ओ एन इंटू हाइट इज एन क्यू डैश, राइट। नाउ ओ एन हाफ इंटू, अब ओ एन, इफ एन इज वेरी वेरी क्लोज, अगर ये एंगल बहुत छोटा होता तो एन और क्यू, एन इज वेरी मच नियर टू क्यू, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू एल होता है। ओ एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ क्यू, हम लोग ये लेकर चल रहे हैं, इंटू एन क्यू डैश। एन क्यू डैश मीन्स ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर। तो हम लोग को मालूम है
कि फॉर द स्मॉल ट्राइंगल अल्फा और द एंगल इज इक्वल टू दैट, क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू डैश एन बाई ओ एन, ये हमको मालूम है। तो क्यू डैश एन कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू एन ओ एन दैट इज एल। तो हम इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, अल्फा इंटू एल। तो ये हो जाएगा हाफ अल्फा एल स्क्वायर। ये एरिया मेरा इतना एल स्क्वायर अल्फा या इतना आया। अब फ्लक्स लिंक्ड, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब यहां कॉस थीटा कितना होगा, ये इंटरेस्टिंग है। कॉस थीटा क्या होगा, देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन और ये जो रॉड है इसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर वो भी सेम डायरेक्शन है, तो उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए जीरो हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली यहां पर पुट कर दे रहे हैं 0 डिग्री। तो ये हो गया b इंटू ए, मेरा कितना आया था, हाफ अल्फा एल स्क्वायर कॉस 0 1 इतना आया। तो b हाफ अल्फा एल स्क्वायर। उसके बाद ई आई निकालेंगे, डी फाई बाई डी टी, निगेटिव साइन होता है हम मोड ले रहे हैं, तो इसका हम लोग d बाई डी टी और यहां पर b इंटू अल्फा एल स्क्वायर बाई 2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो कांस्टेंट है हम बाहर निकाल लिए, हाफ बी एल स्क्वायर डी अल्फा बाई डी टी, हाफ बी एल स्क्वायर डी अल्फा बाई डी टी, डी अल्फा बाई डी टी ये क्या होता है, याद होगा आप लोग को टर्म, डी अल्फा बाई डी टी ये डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता है क्या, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ई आई का वैल्यू आ गया मेरा कितना, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये ई आई का वैल्यू आ गया। ई आई का वैल्यू आ गया तो आई करंट इंड्यूस का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। करंट इंड्यूस का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई आई को अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड से डिवाइड कर देंगे, मेरा ई आई इंड्यूस माने करंट इंड्यूस निकाल सकते हैं। सिमिलरली एक और टर्म हीट डिसिपेटेड, कितना हीट डिसिपेट होगा इसको निकालना होगा। तो क्या करेंगे, इसी केस में हीट डिसिपेटेड, तो हीट निकालने के पहले हमको पावर डिसिपेटेड निकालना होगा। पावर डिसिपेटेड, तो पावर डिसिपेटेड हम कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी होता है। तो यहाँ पर हम लोग फोर्स, हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है, बी इंटू आई इंटू एल इंटू वी या डॉट वी, और एंगल 0 है तो एफ और वी का भी एंगल 0 होगा तो कॉस 0 1 होता है। तो डायरेक्ट मेरा पावर का वैल्यू कितना आया, तो पावर इज इक्वल टू अल्टीमेटली बी आई का वैल्यू क्या रखेंगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड स्मॉल से लिखें क्या या कैपिटल से लिखें, हम लोग स्मॉल से लिखे हैं सीधे, ई आई बाई आर इंटू एल इंटू और क्या बचा वी। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा मेरा, इसका ई आई का वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, ये आएगा पावर डिसिपेटेड का ये फॉर्मूला आएगा। और पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम या हीट बाई टाइम। तो अगर कोई पूछेगा हीट निकालने के लिए तो पावर इंटू टी कर देंगे, ओके। नाउ द एडी करंट, द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग और whirling current produced in a conductor itself due to the change in the magnetic flux linked with the conductor is called eddy current.
when and this eddy current is produced when it is going to place in the non-uniform magnetic field. Just you imagine, जस्ट ऐसा कल्पना करो, एक कंडक्टिंग ब्लॉक है, इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है. तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पर फ्लक्स जो चेंज होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, इसीलिए यहां पर एक सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस हो जाता है इस कंडक्टर में. उस सर्कुलेटिंग करंट को बोलते हैं एडी करंट. एडी करंट. अगर मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन एक मेटल का ब्लॉक है, इसको अगर हम एक ऐसा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इसमें भी सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस हो जाएगा. सर्कुलेटिंग करंट, दैट इज द एडी करंट. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एडी करंट? डायरेक्शन ऑफ एडी करंट. एडी करंट कैसे हमको मालूम होगा? ये डायरेक्शन जानने के लिए लेंजेस लॉ का हेल्प ले लेंगे. लेंजेस लॉ के हेल्प से हम लोग को मिल जाएगा डायरेक्शन. ठीक है. और यही चीज याद रखने वाली चीज है, ये ब्लॉक को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस करते हैं तो वर्लपूल टाइप का या वर्ल्डिंग करंट हमको एक मिलता है. तो दैट इज नोन एज द एडी करंट. यहां पर पूरा एक कंडक्टिंग ब्लॉक है, वो हम रखे हैं. अब इसका एक्सपेरिमेंटल डेमो, एक बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंटल डेमो है एडी करंट को शो करने के लिए. जंपिंग डिस्क का एक्सपेरिमेंट. जंपिंग डिस्क एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको. डिस्क एक्सपेरिमेंट. इसमें देखिए क्या करना होता है. एक हम सॉलोनॉइड लेंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेट. यहां कोर है, आयरन कोर, सॉलोनॉइड है. यहां पर हम लोग सोर्स ऑफ करंट यहां पर देंगे और यहां पर एक स्विच लगा देंगे और यहां पर एक मेटल का कैप रख देंगे. मेटल का कैप कहां पर? कोर के ऊपर. मेटल कैप, मेटल कैप या जिसको डिस्क भी बोलेंगे. जैसे ही ये सोर्स है करंट का, ये क्या है? ये वाला, ये पार्ट है कोर. ये सॉलोनॉइड जैसे ही ऑन होगा तो हम लोग क्या देखते हैं? ये मेटल कैप ऊपर की ओर जंप कर जाएगा अपने आप. जस्ट यू इमेजिन, ये कोर है. जस्ट इमेजिन आई हैव मेड दिस मॉडल. ये सॉलोनॉइड है, इसका यहां सोर्स से ऐड कर दिया और ये एक मेटल का कैप रखे हुए हैं. जब ये सोर्स कनेक्ट होगा, स्विच ऑन होगा, तो ये मेटल कैप ऊपर जंप कर जाएगा. इट विल जंप. नाउ द रीजन क्यों ऐसा हुआ? होता क्या है कि यहां पर हम सोर्स से जैसे कनेक्ट किए तो करंट यहां पर धीरे धीरे इंक्रीज हुआ. करंट इंक्रीज होने पर हुआ क्या? यहां पर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ये कॉइल में ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा. वो करंट जो इंड्यूस होगा, मान लेते हैं यहां पर सर्कुलर टर्न है तो करंट मान लेते हैं यहां नॉर्थ पोल, ऊपर वाला पार्ट में नॉर्थ पोल. तो ऊपर वाला पार्ट में नॉर्थ पोल होगा तो, और ये फ्लक्स किसके साथ लिंक है? ये मेटल का कैप जो है उसके साथ भी लिंक है. तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा. तो यहां पर ये जो ऊपर वाला पार्ट जो है वो उसमें नॉर्थ पोल अगर हुआ तो ये मेटल कैप के बॉटम में भी नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा ड्यू टू द लेंजेस लॉ. ड्यू टू द लेंजेस लॉ जो यहां पर जो पोल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमको मालूम है, क्या मालूम है कि अगर मान लेते हैं ये डायरेक्शन ऑफ करंट पर डिपेंड करेगा. हम लोग मालूम है साउथ कब होता है और नॉर्थ कब होता है, ये हमको मालूम है. तो मान लेते हैं ये ऊपर वाला पार्ट में नॉर्थ पोल हुआ तो यहां पर भी नॉर्थ पोल, इस कैप, मेटल कैप के बॉटम में भी क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल.
तो नॉर्थ नॉर्थ हुआ तो ये रिपेल होगा एंड इट विल जंप। एडी करंट का एडवांटेजेस कहाँ कहाँ? ये इंडक्शन फर्नेस में कहाँ पर होता है, कहाँ पर इसका यूज होता है? फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस। और कहाँ यूज होता है? स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर में इसका यूज होता है। और कहाँ यूज होता है? डेड बीट गैल्वेनोमीटर में, डेड बीट गैल्वेनोमीटर में। इट इज ऑल्सो यूज इन डाइथर्मी, एक प्रोसेस है जो कि लोकलाइज हीटिंग के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल में इसका यूज होता है। और कहाँ यूज होता है? इंडक्शन कुकर में। इंडक्शन कुकर आप लोग देखे होंगे, ऐसा इंडक्शन कुकर आजकल बहुत चलता है, प्रेस्टीज का, उसका फोटोग्राफ ऐसा होता है। कुकर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द एडी करंट। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ एडी करंट। एडी करंट produced in metallic block leads to loss of energy in the form of heat। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, कोई एक मेटल का ब्लॉक है, उसमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखे हैं, तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, तो यहाँ सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज एडी करंट। और ये क्योंकि मेटल का ब्लॉक है तो धीरे धीरे करके ये हीट हो जाता है, इट विल बिकम हीटेड, तो मीन्स हीट इज बीइंग लॉस्ट। दैट इज द first disadvantage। Second is that it produces unwanted damping effect। डैम्पिंग इफेक्ट में भी ये डैम्पिंग इफेक्ट कर देता है किसी किसी जगह में, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होता है तो एनर्जी का लॉस होता है, तो अनवांटेड डैम्पिंग इफेक्ट में भी ये रिस्पॉन्सिबल है एडी करंट। मेन अब देखिए यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर पार्ट है, इसका सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है? स्पेशली आजकल एक इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है ट्रांसफॉर्मर। वहां पर क्या होता है? ट्रांसफार्मर में हम लोग ऐसे होता क्या है, एक प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल। अगर एक मेटल का ब्लॉक हम लोग लिए हुए हैं, यहाँ पर मेटल का ब्लॉक, कंप्लीट ब्लॉक, यहाँ पर कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, और यहाँ पर प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर हम लोग ऐसा ब्लॉक को लिए हुए हैं तो क्या होगा? यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस से इसमें यहाँ पर करंट इंड्यूस होता है, करंट यहाँ पर, और ट्रांसफार्मर अपना वर्क करता है। अगर मेटल का ब्लॉक हम ट्रांसफार्मर कहीं भी यूज कर रहे हैं, तो ये अगर कंप्लीट ब्लॉक लिए हैं तो क्या होगा? इट विल बिकम वेरी हॉट ड्यू टू एडी करंट। एडी करंट के लिए क्या होता है? ये पूरा हॉट हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऐसे ऐसे करके स्लॉटेड, ये पूरा ब्लॉक को स्लॉट के फॉर्म में ऐसे ऐसे पीस करके लैमिनेटेड कोर या लैमिनेटेड स्लॉटेड कोर का यूज करके हम लोग ट्रांसफार्मर बनाते हैं। उससे क्या हीटिंग इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है। ट्रांसफार्मर में हम लोग यूज करते हैं, जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर अगर हम इसको खोल के देखें तो यहाँ पर ये जो है
ये सब यहाँ पर स्लॉटेड कोर्स हैं, स्लॉटेड लैमिनेटेड कोर, ऐसे ऐसे लाइन 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 दिया हुआ है। इसे लैमिनेटेड वार्निश का यूज करके इसको लैमिनेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो तरह का कॉयल यहाँ पर हम लोग ऐसा यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, लैमिनेटेड कोर हम लोग यहाँ पर ये जो यहाँ यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, लैमिनेटेड स्लॉटेड कोर, वार्निश का यूज करके लैमिनेट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हीट विल बी मिनिमाइज हीटिंग और हीट इजेक्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। मींस एडी करंट के चलते जो हीट प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग मिनिमाइज कर दिए विद द हेल्प ऑफ स्लॉटेड कोर। ओके, तो ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का जैसे बताए, तो ये देखिए इसको बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। इसका पूरा स्लॉट रहता है, इसमें एडजस्ट किया जाता है। तो हीट इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है क्योंकि बीच बीच में वार्निश दिया हुआ है, वार्निश। तो हीट इसमें एक्यूमुलेट नहीं हुआ, वरना अगर ये कंप्लीट ब्लॉक होता तो हीट इतना एक्यूमुलेट होता, ये पूरा हॉट हो जाता। तो अभी ऐसा नहीं होता है, हीट मिनिमाइज हो जाता है क्योंकि यहाँ पर वार्निश दिया हुआ रहता है। एडी करंट के चलते हीट प्रोड्यूस हुआ और हीट को मिनिमाइज कैसे किए, स्लॉटेड या लैमिनेटेड कोर देके। ओके।